Good morning, student. I am S.K. Nag, your English teacher. I hope you have done your previous two lessons and you have written all the question answer and you are maintaining your notebooks well. I am here to teach you the third lesson of your honeysuckle book. And the name of the lesson is Tarot's Reward. Today we will learn this lesson. Let us start. Actually, Tarot was a very hard-working, very honest and very sensible son of his parents. This story belongs to Japan. This story has a Japan background. So Tarot wants to fulfill the desire of his parent. His parents wants one day to drink sake. Sake is a Japanese beverage, a drink. Though Tarot was a woodcutter, he was not able to earn so much money that he was able to purchase that sake, and he became very sad by knowing the desire or the wish of his father. Then he decided to work more hard, to work harder than even. And let's see in the story what happened at the end. Is Tarot succeeded to fulfilling the desire of his father? Let's begin this lesson. First, I am going to read it. So I am going to turn off my camera. You also focus where I am reading so that you can understand. A young woodcutter named Tarot lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. One evening, when Tarot and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut, and everyone felt very cold. Suddenly, Tarot's father said, "I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good." This made Tarot sadder than ever, for the heart-warming drink called sake was very expensive. How do I earn more money? He asked himself. How do I get a little sake for my poor old father? He decided to work harder than before. Next morning, Tarot jumped out of the bed earlier than usual and made his way to the forest. He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought. If only he was as warm as I. And with that, he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bone. In this video, we will only cover this 4 paragraphs. This is the first part. Similarly, you will get second and third part of this lesson. So in this class, we only deal with this 4 paragraph. Okay. So now the explanation part. A young woodcutter named Tarot lived with his mother and father on a lonely hillside. As you know, who was Tarot? Tarot was a woodcutter. Okay. Where he lived? He lived in a hillside. With whom? With his mother and father, and he was the only son of his
of his parents. Okay. In meanwhile, I am going to speak in Hindi so that you can understand the explanation better. You have to keep your eye where the text is written. All day long he chopped wood in the forest. What he do for his livelihood? He chopped the wood in the forest. वो अपने लिए अपनी जीविका चलाने के लिए क्या करता था? वो जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था. Though he worked very hard, he earned very little money. Though he worked very hard, हालांकि वो बहुत मेहनत करता था, वो एक मेहनती लड़का था, लेकिन वो उतना पैसा नहीं कमा पाता था. This made him sad. इसके कारण वो बहुत दुखी रहता था. मेहनती वो था, मेहनत करने के बावजूद भी वो बहुत कम पैसा कमा पाता था. तो दिस इज द रीज़न वाई द टेरो वॉज सैड, बिकॉज ही इज जेन्युइनली ए हार्ड वर्कर, बट दो ही इज नॉट एबल टू अर्न more money because he is very honest person. For he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. As you know, Taro was a thoughtful son. Thoughtful means a person who is thinking about the others' need, what the others people want. If you are a very thankful to your parents, that you are a thoughtful son. अगर आप अपने मम्मी पापा के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं, उन्हें खुश रखने के बारे में सोचते हो, तो आप एक क्या है, थॉटफुल बच्चे हो. तो सिमिलरली टेरो वॉज आल्सो ए थॉटफुल सन एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट एवरीथिंग दे नीडेड. और उसकी भी यही इच्छा थी कि वो अपने मम्मी पापा के सभी इच्छाओं को पूरा कर पाए. लेकिन हालांकि उसकी कमाई उतनी नहीं थी, तो इसलिए वो अपने मम्मी पापा की उतनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता था. दैट इज द रीजन व्हाई टेरो वाज सैड. नेक्स्ट पैराग्राफ 2. वन इवनिंग व्हेन टेरो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट. अब एक शाम को क्या हुआ कि जब टेरो और टेरो के जो पेरेंट्स थे वो अपने घर के एक कोने में बैठे हुए थे. तो व्हाट हैपेंड सडनली? ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो. तो एक बिल्कुल बहुत तेज हवा वहाँ से बहना शुरू हो गई. इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट. और जो उनके घर, उनकी जो झोपड़ी थी, उनकी झोपड़ी में जो दरारें थी, उस दरारों में से वो हवा अंदर बिल्कुल एक सीटी की आवाज़ करती हुई अंदर आने लगी. तो एंड एवरी वन फेल्ट वेरी कोल्ड. और जिससे क्या हो रही थी, ठंडी हवाओं की वजह से सब लोगों को बहुत ठंडी लग रही थी. तो व्हाट हैपेंड वन इवनिंग व्हेन टेरो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर, व्हाट हैपेंड? ए स्ट्रॉन्ग विंड सडनली बिगेन एंड दैट स्ट्रॉन्ग विंड वॉज वेरी कोल्ड, सो दैट एवरी वन फेल्ट वेरी कोल्ड. सडनली टेरोज फादर सेड, आई विश आई हैड ए कप ऑफ साकी. और अचानक टेरो के फादर कहते हैं, आई विश, मेरी इच्छा है कि ऐसे समय में, आई विश आई हैड ए कप ऑफ साकी, मेरी इच्छा है कि मुझे एक कप या ऐसे समय में, ऐसे मौसम में क्या मिल जाए पीने के लिए, साकी मिल जाए. तो यहाँ पे वो अपनी इच्छा बताते हैं. आई विश का मतलब होता है यहाँ पे इच्छा करना. ऐसे कैजुअल वे में उसके फादर कह देते हैं कि काश इतना ठंडी लग रही है और एक साकी पीने के लिए यदि मिल जाए. तो व्हाट इज साकी? साकी इज अ ब्रेवरेज, ओके, ए पॉपुलर जापानीज ड्रिंक. तो इट्स अ जापानीज ड्रिंक which was desired by Tero's father so that he can feel better in this cold weather. It would warm me. So what is the use of sake? If we can drink sake, our body become warm and do my old heart good. तो उसका जो शरीर गर्म हो जाता और उसके हार्ट को भी अच्छा लगता. इसलिए उसके पिताजी कैजुअली ऐसे ही बोल देते हैं कि काश मुझे साकी पीने के लिए ऐसे मौसम में मिल जाती तो मुझे गर्मी महसूस होती और मैं ठंड से बच जाता. दिस मेड टेरो सैडर. थर्ड पैराग्राफ, कम टू द थर्ड पैराग्राफ. दिस मेड टेरो सैडर देन एवर.
अब पहले से ही टेरो दुखी था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता था, अपनी माता पिताओं की इच्छा पूरी नहीं कर पाता था। लेकिन अब पिताजी की एक और डिमांड की वजह से वो और दुखी हो जाता है। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साकी वॉज वेरी एक्सपेंसिव। क्यों? क्योंकि वो जो हार्ट वार्मिंग ड्रिंक थी साकी, ये बहुत ही एक्सपेंसिव थी। एक्सपेंसिव मतलब क्या होता है? एक्सपेंसिव मतलब होता है कॉस्टली। क्या होता है एक्सपेंसिव मतलब? कॉस्टली मतलब महंगी। और इसी वजह से वो उसको खरीद नहीं पा रहा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी? अब वो यहाँ पे क्या करता है? सोचता है। एज यू नो, टोरो वॉज अ थॉटफुल सन। नाउ ही स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हिज पेरेंट्स कि हाउ डू आई अर्न मोर मनी, या मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ। ही आस्क हिमसेल्फ हाउ डू आई गेट अ लिटिल साकी फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। मैं अपने बेचारे बूढ़े पिताजी के लिए थोड़ी सी साकी कहाँ से लेकर आऊँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। इसीलिए वो क्या करता है? वो निर्णय लेता है कि वो अब क्या करेगा? ज़्यादा मेहनत करेगा ताकि वो ज़्यादा पैसा कमा पाए। तो व्हाट द डिसीजन ही इज टेकन? ही हैज़ टेकन द डिसीजन दैट फ्रॉम टुमारो he will work harder than before. I hope you are understanding the lesson. Now come to the fourth paragraph. Next morning, Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. अब अगली सुबह होती है. What? As he decided earlier that he will work harder, so he start his day very early in the morning and he straight go to the forest to chop the tree. तो next morning Taro jumped out of the bed earlier than usual. हमेशा के जो उसका उठने का टाइम होता था, अगली सुबह वो उससे भी पहले उठ गया। मतलब जो हर दिन 5 बजे उठता था, तो अगली सुबह वो 4 बजे ही उठ गया। क्यों? क्योंकि उसको और अधिक मेहनत करके ज़्यादा लकड़ियाँ काटनी थी ताकि वो ज़्यादा पैसा कमा पाए। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। और वो सीधा जंगल चले जाता है। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 बार रिपीट किया गया चॉप्ड एंड कट। तो दिस चॉप्ड एंड कट इज रिपीटेड ट्वाइस टू शो दैट ही इज कंटिन्यूसली वर्किंग इन द फॉरेस्ट। वो लगातार जंगल में काम कर रहा है, इस बात को बताने के लिए यहाँ क्या लिखा है? चॉप्ड एंड कट 2 बार इस चीज़ का इस्तेमाल किया गया, इस फ्रेज का। एज द सन क्लाइम्ड मीन्स व्हेन टिल द आफ्टरनून, फ्रॉम मॉर्निंग टू आफ्टरनून ही कंटिन्यूअसली चॉपिंग द ट्री। द सन क्लाइम्ड, जब सूर्य जो है सर के ऊपर आ गया, मतलब दोपहर हो गई। सिंपली कहने का मतलब ये है कि दोपहर हो गई। एंड सून ही वॉज सो वार्म। अब वो दोपहर तक काम करता रहा, सुबह से दोपहर तक। तो क्या हो गया? वो बहुत ही गर्म हो गया, उसका शरीर पूरा गर्म हो गया, पसीना आने लगा उसको। दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, जिसके लिए उसने जो जैकेट पहनी हुई थी वो उसने उतार दी। अब टेक ऑफ का मतलब क्या होता है? टेक ऑफ का हम यहाँ पे मतलब पढ़ सकते हैं रिमूव्ड। क्या पढ़ सकते हैं? रिमूव्ड। वैसे टेक ऑफ आपने सुना होगा, द प्लेन टेक ऑफ लीव द ग्राउंड। टेक ऑफ का लिटरली मीनिंग होते हैं लीव द ग्राउंड, बट यहाँ पे हम पढ़ते हैं रिमूव्ड। तो उसने क्या किया? अपनी जैकेट को रिमूव कर दिया। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वीट। उसका मुंह जो था पूरा सूख चुका था और उसका चेहरा पसीने से पूरा गीला हो गया था। वेट विथ स्वेट मतलब पसीना। माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। अब यहाँ पे वो बहुत ही फिर अपने पिताजी के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि वो थॉटफुल सन है, कि यहाँ पे यदि मेरे पिताजी मेरे इस जगह, जैसे मेरा शरीर अभी गर्म हो गया है, काश मेरे पिताजी का भी शरीर ऐसे ही गर्म हो जाता, तो उन्हें साकी की ज़रूरत शायद नहीं पड़ती और उसे ठंड भी नहीं लगती। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर। तो अपने पिताजी को याद करते हुए, उनकी डिज़ायर, उनकी विश को याद करते हुए वो और मेहनत करना शुरू करता है और लगातार काम करते रहता है। थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द साकी टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन। और ये सोचते हुए कि वो
ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाए ताकि वो अपने बूढ़े पिताजी की हड्डियों को ज़्यादा गर्म करने के लिए उनको साकी जैसा पीने के लिए कुछ पदार्थ दे पाए। तो दिस इज़ द फोर्थ पैराग्राफ एंड वी विल स्टॉप हियर दिस reading and explanation up to fourth paragraph. In the next part, we will learn paragraph 5th, 6th, 7th, 8th and 9. Okay. Now, what we have learned, you have to read it. These are the new words up to the paragraph 4. What we have learned in new words: thoughtful means thinking about what other people want or need. Whistle, a kind of sound made by the whistle. Through means from one end to other end or from beginning to end से होकर गुजरना. Crack means narrow space. Sadder means comparative adjective of sad, sadder, saddest. एक्सपेंसिव मीन्स कॉस्टली. टेक ऑफ हमने पढ़ा यहाँ पे. रिमूव और टू लीव द ग्राउंड. वेट मीन्स कवर विथ वाटर. स्वीट मीन्स टू प्रोड्यूस लिक्विड थ्रू योर स्किन. तो दीज आर द न्यू वर्ड्स फॉर यू. यू हैव टू राइट दिस न्यू वर्ड्स इन योर कॉपी. क्वेश्चंस. दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क. राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. The first question is, who was Taro? Taro कौन था? Second question is, what did he do for his livelihood? वो अपने जीवन चलाने के लिए क्या काम करता था? What happened one evening when the Taro's parents were sitting in a corner? क्या हुआ एक शाम जब Taro के पेरेंट्स अपने घर में एक कॉर्नर में बैठे हुए थे? Question 4, what did Taro decide? Taro ने क्या निर्णय लिया? Question 5, what was the purpose of his hard work? वो कड़ी मेहनत क्यों कर रहा था? तो these are the 5 questions. और अब आपको हम ग्रामर के भी क्वेश्चन दे रहे हैं, तो ये वो भी आपको करना है. Write this question in your notebook. First question, use these words in your own sentence. हमने आज जो न्यू वर्ड्स पढ़े हैं उसे आपको अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करना है. Okay, you have to use these words in your own sentence. Thoughtful, second sad, expensive, warm, take off and chop. Question second, write the comparative form of this adjective. हमने adjectives पढ़ी, तो ये कुछ 5 adjectives I have given you. First is good, second hard, third fast, fourth big and fifth tall. So you have to write the comparative form of these adjectives. Example, good, better, best. Question number 3, enlist the phrases used in this lesson. Phrases means combination of 2 words. जैसे हमने take off, take and off, ऐसे 2 words मिलकर बनी हुई phrases है. ऐसी बहुत सारी phrases इस lesson में है. You have to find out the phrases from the whole lesson and you have to make a list of that phrases. If you want to, you can use these phrases in your own sentence also. Otherwise, you can only make a list of phrases. Question number 4, make 5 sentences using the below structure. अब आपको I wish से स्टार्ट करते हुए सेंटेंस बनाना है. दिस इज अ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर. I wish I will become the Prime Minister of India. I wish I have a lot of money. So these are the examples. You have to make 5 sentences starting with the or beginning with this structure I wish. I hope you have understood up to the 4th paragraph. In the next online class we will deal with the paragraph 5, 6 or up to 9. Thank you very much student. Goodbye and take care.